Hello students, good morning. Jai Swaminarayan, all of you. Welcome to class 4 in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am your maths teacher. So now we will start lesson number 8, fraction. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook. First we will see what you had learned our last classes. So what you had learned our last classes. First you had learned recall exercise. Then after we had learned the equivalent fraction. Then after we had learned the finding equivalent. So in this topic we had by using the multiplication and division method we are solving the finding equivalence fraction. Then after we had learned the checking for equivalence. Then in this topic we had learned by using the crossing method we are solving this problem. Then fraction in the lower term. So fraction in lower term means we need a one only common factor. So this number is called the fraction in lowest term. Then after we had learned the simplification of fraction. So in this topic we had learned by using the division method we are solving the simplification of fraction. Then types of fraction. So which is type of fraction? Like fraction and unlike fraction. Like fraction means when the denominator same of the all numbers is called the like fraction and the denominator is different of the all number is called the unlike fraction. Then improper and proper. What is the improper? Improper means when the denominator is small than numerator is called improper, and when the denominator is greater than numerator is called proper fraction. Then mixed fraction. What is the mixed fraction? When the two fraction is combined with each other is called the mixed fraction. Then unit fraction. When the all set of numerator is the 1 is called the unit fraction. Then after we had learned the convert of the improper fraction and the mixed fraction. So how to convert? Now look at here 3 divided by 5. So we will divide by 3 divided by 5. So when we are divide 3 divided by, so we will get 1 is the quotient and 2 is the remainder. So quotient is writing in the whole number and remainder is writing in the numerator, and denominator whichever the number is denominator we are writing in the denominator. So this when we are converted improper into mixed fraction, and then when we are converted improper fraction into the mixed fraction, that time we are multiplying whole number into the denominator. Whole number is the 2 into 3 6, and then adding the numerator, and numerator is the 1. So 2 into 3 6 plus 1 7, and whichever the number is denominator we are writing that number in the denominator. So denominator number is the 3, so we will get answer 7 divided by 3. Then after we had learned the comparison of the fraction. Then comparison of like fraction. Then when the denominator and numerator change, means both number denominator and numerator is the different, that time we are using the LCM method. And then after comparing number. Then after we had learned the fraction as the division. So this topic we had learned we are converting that fraction into the division, and division is converted into the fraction. Then addition of the fraction with the same denominator. When the denominator is same, so this is the very easy method. We are writing denominator is the one time and adding the numerator number. 3 divided by 11 plus 5 divided by 11. So both denominator is same is 11. So we are writing in the denominator 11, and numerator 3 and 5 is adding. So 3 and 5 we will get 8. We will get answer 8 divided by 11. Then same like that of subtraction of the fraction with the same denominator. When the denominator same both numbers, so we will writing denominator one time. Now look at here 8 divided by 13 and 5 divided by 13, both denominator is same, so we are writing one time denominator 13, and then subtract numerator number 8 minus 5
3, so we'll get answer 3 divided by 13. So this is the subtraction of the fraction with the same denominator. When the denominator and numerator different, addition of fraction with the different denominator, that time we are using the LCM method. जब क्या होता है, डिनोमिनेटर अलग होता है नंबर का, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं. तो जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल थे वो हमने लास्ट पीरियड में सॉल्व किए हैं. नाउ टुडेज अवर टॉपिक इज एक्सरसाइज 8.11 एडिशन. ओके, सो नाउ लुक एट नंबर 1. 1 divided by 3 and 1 divided by 6, one number. Okay, so now we'll solve this in the notebook. So 1 divided by 3 and 1 divided by 6 है. now दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, डिफरेंट है. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेके आएंगे. ठीक है, तो दोनों का डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 3 and 6. 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6, क्योंकि 3 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे 6 आते हैं, 6 के टेबल में 1 वाले प्लेस पे 6 आता है. तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 3 है इक्वल टू, इसको 1 इंटू 2, 3 इंटू 2, कितना आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 6 आ गया. अभी 1 डिवाइडेड बाय 6 है, उसको क्या करेंगे, 1 इंटू 1, 6 इंटू 1, 1 डिवाइडेड बाय 6. अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम दोनों को ऐड कर सकते हैं. 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 आ गया. अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 6 है, और 2 प्लस 1 कितना आ गया, अभी आंसर हमारा 3 डिवाइडेड बाय 6 है. आंसर कितना आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 6 है. अभी यहाँ पे देखो क्या है, न्यूमरेटर स्मॉल है डिनोमिनेटर से. ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. ओके, सो मिक्स फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कैसे करते हैं, 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे. सबसे पहले 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे लिख सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया. अभी इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो इसको हम ऐसे छोड़ेंगे. सो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया हमारा, 1 डिवाइडेड बाय 2 हो गया. वन टाइम लुक एट हियर, 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 6 है. ठीक है, दोनों को हमने एलसीएम निकाला है. एलसीएम कितना निकलता है, 6 निकलता है. तो हमने 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करके 6 निकाला, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके हमने 6 निकाला. अभी 1 डिवाइडेड बाय 3 और 1 डिवाइडेड बाय 6 का भी क्या आ गया, 2 डिवाइडेड बाय 6, 1 डिवाइडेड बाय 6 आ गया. 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6, दोनों का डिनोमिनेटर 1 टाइम लिखते हैं, दोनों को ऐड कर दिया. 2 प्लस 1 3, सो 3 डिवाइडेड बाय 6 आ गया. 3 1 सा 3, 3 2 सा 6 होता है. तो आंसर कितना मिल गया हमें, 1 डिवाइडेड बाय 2, हमें फर्स्ट का आंसर मिल गया. नाउ सेकंड नंबर में है 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 9. ठीक है, अभी दोनों का डिफरेंट अलग अलग, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा. एलसीएम ऑफ 3 एंड 9, दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 और 9 का. 3 के टेबल में 9 आता है, 9 के टेबल में भी 9 आता है, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 9. 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 को 1 के साथ. 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 इंटू 3, 3 इंटू 3, कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 9. अभी 1 डिवाइडेड बाय 9 है, उसको क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 1, 9 इंटू 1, कितना आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 9. अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, अभी दोनों को ऐड कर देंगे. 3 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 9 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, सॉरी 1 है. 3 और 1 को मिलाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 9.
अभी इसको 4/9 इसको ऐसे रख देंगे, क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर है कैसा है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से। अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा दिखेगा तो हम उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर, तो हम इसको क्या करेंगे 4/9 ऐसे एज इट इज लिख देंगे। तो इसका आंसर कितना है, क्या 4/9 सेकंड का। नाउ थर्ड में क्या है 2/5 एंड 1/10। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सॉरी एलसीएम निकालेंगे। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 5 एंड 10 है, तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा 10। 10 के टेबल में 10 आता है, 5 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे 10 आता है। फिर क्या करेंगे 2/5 इक्वल टू 2 इंटू 2 5 इंटू 2। दोनों का डिनोमिनेटर कैसे आना है, हमें 10 लाना है। सो 4/10 आ गया। अभी 1/10 है। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 1/10। अभी दोनों का डिनोमिनेटर 10 आ गया, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 4/10 प्लस 1/10, 4 प्लस 1/10 क्या आ गया यहाँ पे 5/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1 सा 5, 5 2 सा 10। तो आंसर कितना मिल गया हमें 1/2 हमें आंसर मिल गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है 7/8 एंड 3/4। नाउ दोनों का डिनोमिनेटर क्या है 7/8 3/4, 8 और 4 है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 8 एंड 4, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 8। 8 के टेबल में फर्स्ट वाले प्लेस पे 8 आता है, 4 के टेबल में सेकंड वाले प्लेस पे 8 आता है। तो दोनों का एलसीएम क्या है 8 है। तो 7/8 है, तो हमें इसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7/8 आ गया। ओके, नाउ 3/4 है, उसको क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 इंटू 2 4 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, 4 इंटू 2 8। अभी दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया है 8, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। 7/8 प्लस 6/8, 7 प्लस 6/8। अभी 7 प्लस 8 कितना होता है 13/8। कितना आ गया 13/8। ना लुक एट हियर, यहाँ पे क्या है इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से, तभी इसको क्या करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन के लिए हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 8 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे। सो 8 1 सा 8, 13 में से 8 गया, कितना बचेगा 5। तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन कितना है 1 मिल गया, ठीक है। न्यूमरेटर में हम क्या लिखते हैं रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है हमारा 5 है, और डिनोमिनेटर में क्या है 8 है। तो हमें क्या मिल गया इसका आंसर 5/8। जब हमें क्या दिखेगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है स्मॉल है न्यूमरेटर से, उस समय हम क्या करेंगे उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिक्स फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट कैसे किया है 8 को 13 के साथ डिवाइड किया है, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये रफ में करना है सॉल्व आपको। 8 को 13 के साथ डिवाइड करेंगे, देन 13 को 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 आता है कि 8 के टेबल में नहीं आता है। नियरेस्ट वैल्यू क्या है 8। सो 8 कौन से प्लेस पे है 1, और 13 में से 8 बच गया, माइनस किया तो कितना बच गया 5। तो हम होल नंबर में क्या लिखते हैं जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है 1 है,
रिमाइंडर हम न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में सेम जो नंबर है वही लिखेंगे। सो 1 5 डिवाइडेड बाय 8 हमारा फोर्थ का आंसर मिल गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 7 एंड 3 डिवाइडेड बाय 40। 1 डिवाइडेड बाय 7, 3 डिवाइडेड बाय 40 है। एलसीएम ऑफ 7 एंड 40। 7 और 14 का एलसीएम क्या आएगा, 14। 14 के टेबल में फर्स्ट वाले प्लेस पे 14 आएगा, 7 के टेबल में 2 वाले प्लेस पे 14 आएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू 1 इंटू 2, 7 इंटू 2, 2 डिवाइडेड बाय 14। 3 डिवाइडेड बाय 14 इक्वल टू 3 इंटू 1, 14 इंटू 1, 3 डिवाइडेड बाय 14। अभी दोनों का डिनोमिनेटर 14 आ गया तो दोनों को ऐड कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 14, 2 प्लस 3 एंड 14, 2 प्लस 3 5 डिवाइडेड बाय 14। आंसर कितना मिल गया हमें, 5 डिवाइडेड बाय 14। नाउ लुक एट हियर, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर, सो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो फिफ्थ का आंसर हमें क्या मिल गया है, 5 डिवाइडेड बाय 14। नाउ लुक एट हियर, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10। दिस इज होमवर्क फॉर यू। ये सेम है, सो होमवर्क है आपको 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। अभी मैं 11, 12 और 13 सॉल्व करूँगी, 14 एंड 15 ये आपको होमवर्क है। अभी क्या करूँगी सॉल्व में, एग्जाम्पल नंबर 11, 12 एंड 13 ये 3 सॉल्व करूँगी और ये दोनों आपको होमवर्क है। सो नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 11। 6 से लेकर 10 तक आपको होमवर्क है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 11, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 1 डिवाइडेड बाय 3। ओके, LCM of 2, 4 एंड 3। तीनों में कौन सा नंबर जो है वो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अगर हम 2 का टेबल लिखेंगे तो 2, 4 और 3। अभी देखो 4 और 3 दोनों के टेबल में 12 आता है और 2 के साथ भी 12 डिवाइड होगा, तो तीनों का एलसीएम क्या आएगा, 12। 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 12। सो 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 इंटू 6, 2 इंटू 6, तो क्या आ गया, 6 डिवाइडेड बाय 12 आ गया। 1 डिवाइडेड बाय 4 है, उसको क्या करेंगे, 1 इंटू 3, 4 इंटू 3, 3 डिवाइडेड बाय 12, 1 डिवाइडेड बाय 3। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो तीनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया, 12 आ गया, तभी हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 12। तीनों का डिनोमिनेटर 12 आ गया, अभी तीनों को ऐड करेंगे। 12, 6 प्लस 3 प्लस 4, 6 प्लस 3 प्लस 4 कितना आएगा, 6 प्लस 4 सॉरी 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 4 13 डिवाइडेड बाय 12। अभी देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से, तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 12 को हम 13 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 1 जा 12 एंड 1। सो हमें आंसर कितना मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा
क्वोशंट 1 है, रिमाइंडर 1 है और डिनोमिनेटर में कितना आएगा 12। सो आंसर कितना मिल गया है 1 डिवाइडेड बाय 12। आंसर कितना मिल गया है 1 डिवाइडेड बाय 12। ये आपको रफ में सॉल्व करके देखना है, ये आपको नहीं लिखना है। ओके, सो आंसर कितना मिल गया है 1 डिवाइडेड बाय 12। सो दिस इज 11 नंबर। नाउ लुक एट 12 नंबर। 12 नंबर में है 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 5। अभी हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5। अभी तीनों के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो हम डिवाइड करेंगे तो तीनों के साथ डिवाइड होगा। ठीक है, अभी देखो 3 के टेबल में 10 वाले प्लेस पे 30 आता है। कितना आता है 30 30 आता है। 5 के टेबल में 6 वाले प्लेस पे 30 30 आएगा। 2 के टेबल में 30 आता है क्या? नहीं, लेकिन हम 2 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30। मतलब हमें 2 को क्या करना पड़ेगा 50 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 30 30 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 20 तक आता है तो 20 तक आता है तो 20 तक 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। ठीक है, कॉमन अगर नंबर लेंगे, यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, 2 का टेबल लिख देंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये 2 का टेबल हो गया। ठीक है, 3 का 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 30। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, देन 35 हो गया। देन उसके बाद 40, 45 एंड 50। अभी हम देखेंगे तीनों के टेबल में तो कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? इसमें 20 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, लेकिन 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। यहाँ पे 30 30 आ रहा है, यहाँ पे 30 30 आ रहा है, लेकिन 2 के टेबल में 30 30 आएगा क्या? नहीं आएगा। लेकिन हम 2 को अगर 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 30 हमारा आंसर आ सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा एलसीएम क्या लेंगे 30 30। मतलब हम 2 का टेबल और बढ़ा देंगे तो इसका एलसीएम क्या आता है 30 30 आता है। 2, 3 और 5, 2, 3 और 5 में कॉमन क्या आएगा 30 30 आता है। नाउ लुक एट हियर, 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1 इंटू 15। हमें 2 को क्या करना पड़ेगा 15 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 2 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30 30 आता है। तो यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 30। 1 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 1 इंटू 10, 3 इंटू 10। 10 डिवाइडेड बाय 30 आ गए। देन 1 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या करेंगे 1 इंटू 6, 5 इंटू 6, सो 6 डिवाइडेड बाय 30। अभी तीनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया 30 आ गया। अभी हम क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। 15 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 30 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 30। डिनोमिनेटर सेम है 30, डिनोमिनेटर में 13 लिख देंगे। 15 प्लस 10 प्लस 6, 15 प्लस 10 कितना होगा 25, 25 प्लस 6 कितना होगा 31। 31 डिवाइडेड बाय 30 आ गया। अभी देखो डिनोमिनेटर क्या है स्मॉल है न्यूमरेटर से, तो उसको हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे 30 को 31 के साथ डिवाइड करेंगे। सो 31 सा 30, तो क्या आ गया हमारा आंसर 1
क्वेश्चन कितना है 1 है, रिमाइंडर 1 है और डिनोमिनेटर में 30। सो आंसर कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाय 30 हमारा आंसर मिल गया। सो दिस इज 12 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है 3 डिवाइडेड बाय 4, 1 डिवाइडेड बाय 8, देन 3 डिवाइडेड बाय 8। अभी देखो दोनों का डिनोमिनेटर 8 है, ठीक है, एंड 4 है। 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा 8, और दोनों का डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 ही है। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 8 2 टाइम्स है तो हमें 8 को 1 टाइम ही लिखना है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा। 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 3 इंटू 2, 4 इंटू 2, 6 डिवाइडेड बाय 8, देन 1 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 1 इंटू 1, 8 इंटू 1, 1 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 3 इंटू 1, 8 इंटू 1, 3 डिवाइडेड बाय 8। अभी तीनों का डिनोमिनेटर कितना आ गया 8 आ गया। तो क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। 6 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। अभी तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 8। 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10 डिवाइडेड बाय 8 मिल गया। अभी इसका डिनोमिनेटर स्मॉल है न्यूमरेटर से, तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे। सो 8 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 8 1 सा 8। क्वेश्चन कितना मिल गया हमें 1। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 2 और डिनोमिनेटर में 8। सो आंसर कितना मिल गया है 1, 2 डिवाइडेड बाय 8 हमें आंसर मिल गया इसका क्वेश्चन नंबर 13 का। नाउ 14 एंड 15 दिस इज होमवर्क फॉर यू। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में भी एडिशन है। यहाँ पे क्या है मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम कन्वर्ट करके फिर उसको क्या करेंगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम लेके आएंगे। सो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर बी। बी का फर्स्ट नंबर का 3 1 डिवाइडेड बाय 4 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3 है, ठीक है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर देंगे। 3 1 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। क्या आएगा कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू 4 12, 12 प्लस 1 13 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। ये कितना आ गया 13 डिवाइडेड बाय 4 आ गया। और दूसरा कितना है 2 डिवाइडेड बाय 3 है। अभी दोनों को 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 3। अभी इसका डिनोमिनेटर कितना है 4 है और इसका डिनोमिनेटर 3 है। अभी हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 3, दोनों का एलसीएम क्या आएगा 12। 4 के टेबल में 12 आता है और 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो हम दोनों का डिनोमिनेटर क्या लेके आएंगे 12 आएंगे। सो 13 डिवाइडेड बाय 4 है फर्स्ट नंबर, और सेकंड नंबर क्या है 8 डिवाइडेड बाय 3 है। तो दोनों का डिनोमिनेटर हम 12 लाएंगे। तो क्या करेंगे 13 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन 4 को 3 के साथ, यहाँ पे 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। अभी 13 3 सा 39 एंड 4 3 सा 12, 8 3 सा 8 4 सा 32 एंड 3 4 सा 12। कितना आ गया अभी 39 डिवाइडेड बाय 12 एंड 32 डिवाइडेड बाय 12। दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया। अभी क्या करेंगे ऐड करेंगे
39 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 12, दोनों को ऐड करेंगे 39 डिवाइडेड बाय 32 एंड 12, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 71, कितना आता है 71 आता है, 71 डिवाइडेड बाय 12 आएगा। अभी इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि इसका डिनोमिनेटर कैसा है, स्मॉल है न्यूमरेटर से। तो अगर हम 12 को 71 के साथ डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, नियरेस्ट वैल्यू क्या है, 12 5 सा 60, 12 6 सा 72 होता है, 72 नहीं आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 12 5 सा 60 आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। सो हमारा यहाँ पे होल नंबर क्या आएगा 5, क्वेश्चन कितना है 5 है, रिमाइंडर कितना है 11 है, यहाँ पे 12, तो आंसर कितना आ गया हमारा 5, 11 डिवाइडेड बाय 12 हमारा आ गया है। ये हमने क्या किया है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। सो दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लुक एट एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 4 1 डिवाइडेड बाय 8 एंड 2 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अभी इसको हम डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, 4 इंटू 8 32, 32 प्लस 1 33 डिवाइडेड बाय 8 एंड इसको 2 इंटू 2 4 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है। अभी हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम ऑफ 8 एंड 2 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, 8 आएगा। 2 को हमें 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 को 1 के साथ, 33 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 33 मल्टीप्लाई 1 8 मल्टीप्लाई 1, 33 डिवाइडेड बाय 8। अभी 5 डिवाइडेड बाय 2 है, सो 5 इंटू 4 एंड 2 इंटू 4, 20 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया हमारा आंसर 20 डिवाइडेड बाय 8। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 33 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 8, 33 प्लस 20 डिवाइड बाय 8, सो कितना आएगा हमारा 52 डिवाइडेड बाय 8। अभी डिनोमिनेटर स्मॉल है तो इसको हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो 8 divided by 52, so what is the nearest value, 8 6 are 48, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4, 12 में से 8 गया, कितना बच गया हमारा, सॉरी कितना बच गया 4 बच गया, तो हमारा आंसर कितना आएगा, क्वेश्चन में 6 है और यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 8। सो हमारा मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ गया 6, 4 डिवाइडेड बाय 8 हमारा आंसर मिल गया है सेकंड नंबर का। ओके, नाउ थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर, विच थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, दिस इज होमवर्क फॉर यू। ठीक है, आपको ये 3 होमवर्क है, देन नेक्स्ट पीरियड में हम 6, 7, 8 सॉल्व करेंगे, 9, 10 आपको होमवर्क रहेगा। ओके, so which is the homework for you now, 3, 4 and 5, this is homework for you. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.